मेनली आपको लेटर भी छोटा ही लिखना पड़ेगा क्योंकि 4 मार्क्स का है उसमें। फर्स्ट पर्सन ने मुझे बताया, फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन को बताया, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को कैसे बताएगा वो। जो इतनी इंग्लिश आती है ना लगा देनी है बस। ये सब वर्ड्स देख के ना एग्जामिनर को अच्छा लगता है, वो ऐसे ही मार्क्स दे देगा। जब उन्होंने सुसाइड करने का आइडिया गिव अप करा तो तभी से उन्होंने आइडिया ऑफ स्मोकिंग में तभी से उन्होंने गिव अप कर दिया। 30 से 40 वर्ड्स की वर्ड लिमिट रखना। 30 से 40 वर्ड्स मीन 3 से 4 लाइन में खत्म करना है। हेलो एवरीवन, टुडे वी गोना कंटिन्यू विद आवर पार्ट बी ऑफ क्लास 10th NIOS बोर्ड इंग्लिश का सैम्पल पेपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट सेक्शन इज योर रीडिंग सेक्शन। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अगर आपने पार्ट ए देखा होगा इस सैम्पल पेपर का तो मैंने एक ट्रिक बताई थी अनसीन पैसेज को सॉल्व करने की, जो थी कि टू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट देन रीड द पैसेज सो यू विल get easy to find out your answer. Okay, so first let's read the questions. Why gorillas have become rare? Which two things in the passage indicate that gorilla is the largest of the great apes? What do gorilla do from 6 a.m. in the morning till 2 o'clock in the afternoon? Or what do young gorillas do from 10 a.m. to 2 p.m.? Right? Then who is the leader of the gorilla family? What is the usual weight of a female gorilla? Pick out the words which mean to get into a warm, take part in a fight. Right? Now let's move towards the passage. Gorilla is the largest of the great apes. A large male gorilla living in the wild may weight 204 kilograms. Standing up on its legs, it may be about 6 feet tall. राइट? फीमेल्स यूजुअली वेट 91 किलोग्राम्स। हमसे पूछा था फीमेल का वेट, फीमेल एलिफेंट का वेट, तो इट्स 91 किलोग्राम। जहाँ जहाँ आपको आंसर मिलते जाए जस्ट मार्क इट, ओके? एंड आर शॉर्टर देन मेल्स ऑफ कोर्स। गोरिल्लास लिव इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल अफ्रीका. They are unaggressive creatures. They are unaggressive, not aggressive. Unaggressive creatures living in family groups led by a big male, okay? तो लेड बाय मीन्स लीडर। लीडर जो है फैमिली ग्रुप्स का, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, लीडर आर बिग मेल, ओके? ईच ग्रुप wanders in its own home range. During the day, gorillas rarely travel much more than 1 kilometer because the leaves and shoots that they eat are plentiful in the forest where they live. A gorilla's day starts at dawn about 6 a.m. when they partly wakes and searches for food. Okay, कुछ टाइम के रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा था तो हमने मार्क कर लिया। याद नहीं आ रहा कोई बात नहीं, कुछ तो याद होगा, टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था एक, तो जस्ट मार्क इट। फ्रॉम अबाउट 10 a.m. until 2 p.m. दे रेस्ट, एक ये भी मार्क कर लेते हैं, ओके? व्हेन द अडल्ट्स रेस्ट, यंगर एप्स रेसल विद ईच अदर, wrestle with each other, okay? Fight, play games and swing back and forth on vines. Back and forth matlab like this, okay? After this, the party travels through the forest. Party means group. यहाँ पे group word की जगह यहाँ पे party use कर दिया है, okay? Travels through the forest again, looking for more food until dusk, that if about 6 p.m. okay, for more food. Gorillas are always on the move and never spend more than one night in the same place, okay? It's an interesting fact. They sleep in nest made of branches which they break or bend to make a crude platform either on the ground or in trees. Adult gorillas build their own nest while baby gorillas snuggle in with their mothers, okay? A new nest is made every day because of hunting, destruction of rainforest and human wars that affect gorilla habitat. Gorillas are now very rare. There are less than 400 gorillas left in the wild, okay? Why gorillas have become rare? Here are the answers. You can see, because of hunting, destruction of rainforest and human was that affect gorilla habitat. Gorillas are now very rare. There are less than 400 gorillas left in the world. ये आपका पूरा लास्ट वाले पैरा से लिया गया है, देखो। Because of hunting, destruction of rainforest, human wars that affect gorillas habitat, right? Gorillas are now very rare. There are less than 400 gorillas left in the world. तो ये आपका आंसर 1 हो गया।
ठीक है. Next, which two things in the passage indicate that gorilla is the largest of the great apes? Okay, the weight is 204 kg and the height is 6 feet. Okay, तो गोरिल्ला को लार्जेस्ट एप्स क्यों बताया गया है कि वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ गोरिल्ला ही है वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रेट एप्स. क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स दे वेट 204 ग्राम्स, वो 204 किलो के होते हैं भाई. ओके, एंड जो उनकी हाइट होती है वो 6 फीट की होती है. ठीक है, दैट इज द रीजन दे आर नोन फॉर द ग्रेटेस्ट एप्स इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट, वॉट डू गोरिल्लाज डू फ्रॉम 6 AM in the morning till 2 o'clock in the afternoon? ठीक है, गोरिल्लाज क्या करते हैं सुबह के 6 बजे से दोपहर के 2 बजे तक? दे सर्च फॉर फूड, मार्क किया होगा आपने, दे सर्च फॉर फूड फ्रॉम 6 AM to 10 AM एंड दे रेस्ट फ्रॉम 10 AM to 2 PM. ओके, ये इनका डेली का रूटीन काइंड ऑफ है. नेक्स्ट चलो, वॉट डू यंग, और है यहाँ पे ऑप्शन है इन दोनों में, वॉट डू यंग गोरिल्लाज डू फ्रॉम 10 AM to 2 PM? यंगर एप्स रेसल विद ईच अदर. ठीक है, यंगर एप्स की बात हो रही थी. यंगर एप्स रेसल विद ईच अदर, play games and swing back and forth on the vines or from 10 AM to 2 PM. Right? Next, who is the leader of the gorilla family? Larger male. Okay, what is the usual weight of a female gorilla? ठीक है, the male gorilla is the largest leader of the family. Right? A female gorilla usually weighs 91 kilograms. Okay, now pick out some words with meaning. To get into a warm मतलब like you know something related to comfort, and यहाँ पे comfort का क्या वर्ड यूज़ किया गया है पैसेज में, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो बताया था कि जो यंगर जो होते हैं ना, बेबी एलिफेंट्स जो होते हैं, दे यूज टू स्नगल विद देयर मदर इनसाइड द नेस्ट. ओके, सो यहाँ पे स्नगल आ जाएगा इसका. Snuggle. Okay, now take part in a fight, wrestle. What they used to do, the younger apes used to wrestle with each other. Okay, we are done with the unseen passage. Now let's move towards section B, which is writing. Okay, you are Amita, librarian of public school, Horse Khas, Delhi. Write a Jindal publisher Pratap Vihar, Delhi, to place an order for English to Hindi dictionary, illustrated children's encyclopedia, fiction books, etc. for your school library. Then for a catalog, discount offered, mode of payment and time taken for delivery in 150 to 200 words. See, तो और भी पढ़ लेते हैं. यू आर रवि, योर फ्रेंड राम is interested in taking up as a course in personal development. Complete the following email to him, confronting him about the Center for Personality Development, an institute in your city that conduct this course and has the best faculty, by filling up the blank spaces suitable. Right? So it's a, wait, write a letter. It's a letter. And what it is, it's a email writing. email writing, I guess यही है. राइट, ओके. तो लेटर राइटिंग का क्या फॉर्मेट रहेगा आपका? लेटर राइटिंग या जो ईमेल राइटिंग होती है, ठीक है, ये दोनों, एक ईमेल है एक लेटर है, इन दोनों का सेम ही फॉर्मेट है. देखो ये आपका 4 नंबर का आ रहा है बेटा. दिस इज़ फॉर 4 मार्क्स. अब मैं आपको समझा देती हूँ पैटर्न क्या रहेगा. ठीक है, 4 मार्क्स का है ये, एंड इसका जो फॉर्मेट है, ठीक है, लेटर राइटिंग एंड ईमेल राइटिंग का जो फॉर्मेट होगा ना, उसके 1 मार्क्स होते हैं. ठीक है, आपका फॉर्मेट का जाएगा 1 मार्क्स, फॉर्मेट का 1 मार्क्स जाएगा आपका. फिर आप जो कंटेंट लिखोगे, छोटे से छोटा ही लिखना. ईमेल तो छोटा ही जाता है. कंटेंट आपका 2 मार्क्स का है, एंड मेनली आपको लेटर भी छोटा ही लिखना पड़ेगा क्योंकि 4 मार्क्स का है उसमें. राइट, 2 मार्क्स का कंटेंट आप कितना बड़ा लिखोगे. ओके, तो इट्स अ प्लस पॉइंट. देन एक्सप्रेशन आपके, you know, what words you use, what tense you use, right, and what tone you are using, तो उसका 1 मार्क है.
तो बहुत इजी है ये 4 मार्क्स ग्रैब करने, ये आपको करने हैं, लाइक इट्स वेरी इजी। बाकी लेटर वगैरह 6 मार्क्स के आते हैं, बट यहाँ पे आपको 4 मार्क्स में दे दिया है, समझ रहे हो? तो 2 मार्क्स का कंटेंट मतलब आपको ज़्यादा नहीं लिखना, कुछ कुछ लाइंस तो एकदम आपको बस कॉपी करनी होती है। एक्चुअली हमारी ये राइटिंग सेक्शन की एक सेपरेट वीडियोस आएगी, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। उसमें मैं आपको सारी ट्रिक्स वगैरह बताऊंगी कि कैसे यू विल अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चंस एंड ग्रैब ईच एंड एवरी मार्क्स। ओके, सो या दिस विल बी योर फॉर्मेट, marks distribution of this. Now next question number 24. Read the telephone conversation given below. Okay, it's a telephone conversation which we have to read, and it's of 2 marks only, just 2 marks. Okay, caller, could I talk to Mr. Bharat? I am RN Sharma from INFO Tech Company, Infotech Company. Sumit, sorry, he is out with the guest. I am his son Sumit. Caller, Sumit, your father had to attend a meeting at Chennai. The meeting has been postponed. Please inform him about the change so that he can cancel his flight. Sumit, I will do the needful, Mr. Sharma. You are Sumit. You will, like, you are attender, okay? You are attender of this conversation. You will not be at home when your father returns. Write a brief message to be left on his table. Okay. So here it is given that someone called Sumit, or not someone, caller, okay, he told him कि आपके पापा को बोलो कि हमारी जो मीटिंग है पोस्टपोन हो गई है, अपनी फ़्लाइट को वो कैंसिल करते। तो सुमित बोल देते कि हाँ आई विल डू दैट, लाइक आप बोल देते हो, आप सुमित हो इस टाइम पे, ओके, इमेजिन योर सेल्फ। नाउ आप बोल देते हो कि हाँ आई विल डू द नीडफुल, थैंक यू। एंड नाउ जब आपके पापा आएंगे, वेन योर फादर विल रिटर्न, यू विल नॉट विल बी एट होम, तो आप घर पे नहीं होगे, तो यू विल लेफ्ट अ व्हाट मैसेज, ओके, आप घर पे और उनके टेबल पे, ऑन हिज टेबल यू विल लेफ्ट अ मैसेज कि ऐसे ऐसे है, कॉल आया था आर्यन शर्मा का फ्रॉम इन्फोटेक कंपनी एंड यू हैव टू कैंसिल योर फ्लाइट वगैरह वट एवर, राइट। नाउ मैसेज राइटिंग का अब देखते हैं हम। सो मैसेज राइटिंग टोटल मार्क्स 2 to be divided as under just 2 marks, and it's so easy. See, I will make you understand now. 2 marks है अपने पे, ठीक है। अब देखो डिवाइडेड कैसा किया गया है। एक तो कंटेंट का 1 मार्क है, 1 मार्क का कंटेंट लिखना है आपको, बस छोटा कितना, लाइक आपको यू हैव टू राइट प्रिसाइजली बट यू हैव टू राइट अप्रोप्रिएट लाइन्स, ठीक है, मतलब एकदम बात की बात करनी है, मैसेज छोड़ना है, हाँ बस आपने मैसेज छोड़ दिया, दैट्स इट, ओके। फालतू वालतू नहीं लिखना, जस्ट 1 मार्क का है, कुछ वर्ड्स ही लिखने हैं, 2-3 लाइन में ख़त्म कर दो अपना मैसेज, ठीक है, क्योंकि 1 मार्क का कंटेंट है, राइट। अब कंटेंट का 1 मार्क है, एंड एक्सप्रेशन के तो होते ही है 1 मार्क, लाइक विच टेंस यू यूज़, विच टोन यू यूज़, राइट, एंड या सो ओके। हाँ, एंड आप अपने फादर को लेटर लिख रहे हो, तो आपकी जो टोन रहेगी इनफॉर्मल टोन रहेगी, राइट। इनफॉर्मल टोन रहेगी तो और इजी होगा मैसेज लिखना आपको, ठीक है, गॉट इट। और इसका बाकी फॉर्मेट वगैरह क्या होता है हमारी सेपरेट वीडियो आएगी, आप उसमें देख ही सकते हो, यहाँ पे मैं थोड़ा बता देती हूँ। ऑफ कोर्स बॉक्स में जाएगा मैसेज आपका, ठीक है, ऐसा आपको बॉक्स बनाना है। फिर उसके बाद व्हाट यू डू, ओके, यहाँ पे आप लिखोगे ऐसे मैसेज, अंडरलाइन, वेट, यहाँ डेट, यहाँ आपका टाइम आता है, ठीक है, एंड यहाँ पे आपका नेम आता है, एंड यहाँ पे आपका पूरा कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। 1 मार्क का कंटेंट है, थोड़ा बहुत ही लिखना है, बस 3-4 लाइन, ठीक है। नाउ यू हैड गॉन टू अ बैंक फॉर गेटिंग अ बैंक ड्राफ्ट मेड in order to deposit the exam fee. It was a busy day at all the counters, busy suddenly. 3 young robbers entered the bank building and started firing. There was commotion and terror all around. Of course, the robbers ransacked the cash boxes at the counters. They were about to leave when 2 young men appeared from nowhere and caught hold of them. This encouraged the order customers to act. Write a report about this incident in about 100 words for publication in the local newspaper. Okay, ये आपका 6 मार्क्स का है, राइट। तो इसमें व्हाट यू हैव टू डू, राइट अ रिपोर्ट, ओके।
तो इट्स अ रिपोर्ट राइटिंग. ओके, रिपोर्ट राइटिंग है ये. रिपोर्ट का तो सिंपल फॉर्मेट है. ऐसे आपको बॉक्स बनाना है. here you have to write your title, like what is your title. then यहाँ पे आ जाता है आपका by this, जो भी आपका नाम है. इसमें आपका नाम, कुछ नाम नहीं गिवन है, आप XYZ लिख दो, कोई भी नाम लिख दो, अपना नाम लिख दो, ठीक है. एंड फिर यहाँ पे आपका कंटेंट आ जाएगा. अब देखो इसमें भी ऐसा ही होगा. फॉर्मेट का आपको 1 मार्क्स तो मिलेंगे, ठीक है, बट बाकी जो 5 मार्क्स है, यू हैव टू यू नो use appropriate expression, your tone, tenses, you know everything should be crystal and clear. तभी आपको 5 मार्क्स आप ग्रैब कर पाओगे, वरना नहीं, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स का है, ठीक है. एंड अभी हम इसका देख लेते हैं. ओके एंड हाँ, पहले हम इसका डिस्कस करते हैं. ओके नेक्स्ट, इसका आंसर देख लो, ये रहा. मैंने बताया था आपको फॉर्मेट, रिपोर्ट राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग जो भी है, ठीक है. आर्टिकल राइटिंग कैसे होती है, आप कोई भी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखते हो, टू द एडिटर वगैरह जो भी है, फिर उसके बाद 3 कॉलम्स बनते हैं. मैंने आपको पार्ट ए वाली वीडियो में बताया था, वी हैव डिस्कस, बट कोई बात नहीं, इनकी इस सेक्शन की पूरी आपकी सेपरेट वीडियोस आएगी, आप उनको देखना. मैं उसमें टिप्स ट्रिक्स वगैरह सब बताऊँगी. एंड या यू विल बी डैम गुड इन दिस. ओके तो रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग दोनों आपकी 6 मार्क्स की है, ठीक है. अब 6 मार्क्स आपके डिवाइडेड कैसे बेटा, फॉर्मेट तो 1 मार्क्स का आता ही आता है, कंटेंट आपको 3 मार्क्स का लिखने हैं, ठीक है. मतलब आप समझ लो एक्सप्रेशन कंटेंट में ही आ जाता है, मतलब तो टोटल आपको मिला के जो है वो 5 मार्क्स का आपको लिखना है, ठीक है. 5 मार्क्स का आपको पूरा अपना कंटेंट लिखना है, अच्छा खासा लिखना है, बड़ा. ओके एंड एक्सप्रेशन वही आपका, एक्सप्रेशन में टेंस आ जाता है, टोन आ जाती है, ठीक है. एंड द वे यू स्टार्ट, द वे योर बॉडी, यू नो, एंड देन द वे यू कंक्लूड. ओके, ये सब चीज़ आ जाती है आपके एक्सप्रेशन में, राइट. मतलब आप, मैं आपको उसी वीडियोस में बताऊंगी सारी टिप्स ट्रिक्स, इसी में नहीं बता रही मैं सब, ठीक है. नेक्स्ट आपका और में आ जाता है, लाइक इफ़ यू आर डाउटिंग इन योर रिपोर्ट राइटिंग वाला स्किल, तो आप आर्टिकल कर सकते हो, ठीक है. आर्टिकल मेरे को तो पर्सनल फेवरेट मेरा आर्टिकल है. आर्टिकल थोड़ा ज़्यादा इजी रहता है, ठीक है. राइट एन आर्टिकल ऑन इम्पोर्टेंस, आर्टिकल लिखना है ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक, ठीक है. यू आर सोहम और सोनिका, इसमें आपका नाम दिया हुआ है. यूज़ द फॉलोइंग क्लूज, अब इसमें आपको क्लूज दिए गए हैं, आपको उसको यूज़ करके अपना आर्टिकल लिखना है, ठीक है. मेक योर राइज अर्ली, फ्रेश एयर, ब्लड रशेज थ्रू योर बॉडी, एनर्जी फॉर द डे, हंग्री फॉर ब्रेकफास्ट, गुड फॉर स्टडीज, ऑल डे एक्टिव, राइट. आप ऐसे करके आप लिख सकते हो. यू नो आर्टिकल को लिखते कैसे, आप उसमें बेनिफिट्स बताओगे. अगर आपको कोई चीज़ के बारे में उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है तो आप बेनिफिट्स बताओगे, ठीक है. एंड आपकी बॉडी में क्या इफेक्ट्स होंगे, आपकी डेली जो आपकी हैबिटेट है, लाइक इफ़ यू आर स्टूडेंट सो हाउ इट विल हेल्प इन योर स्टडीज़, राइट. तो आप ये सारी चीज़ें बताओगे, ओके. ये सब चीज़ें आपको बताना है एकदम, लाइक हम जैसे बचपन में पैराग्राफ लिखते थे ना, कि आपको सभी चीज़ बतानी है, लाइक आप कैसे करते हो उसको, और क्या बेनिफिट्स है, क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या एडवांटेजेस है, ये सब बताते थे. अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस तो होंगे नहीं ऑफ कोर्स, ठीक है. तो एडवांटेजेस जो भी होंगे आपको उनको एकदम इलेबोरेट करके लिख देना है बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है. तो लाइक morning walk is a good habit for you, it will make you rise early, right. And we will breathe fresh air, the morning air is fresh, तो it's good for our body to breathe fresh air. ऐसे ऐसे आप करके लिख सकते हो. blood rushes through our body when we walk in the morning, the blood rushes through our body, then energy for the day, hungry for breakfast, okay. it gives us a plentiful energy for the day to work all the day, okay. And then it makes us hungry for the breakfast, we should eat good breakfast, right. फिर उसके बाद it's good for our studies, it make our mind fresh, it makes us refresh, okay. And आप इसमें ये कर सकते हो, yeah, it reduces our stress which we are having in our studies and all, whatever you can write it. Then all day active, our whole day becomes active when we do a morning walk daily, वगैरह वगैरह. आप ये सब चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है. मैंने कुछ पॉइंट्स बताया है, यू कैन कंक्लूड इट एंड अपने दिमाग में लाइन्स वाइन्स बना के जस्ट राइट इट डाउन, ओके. इसका भी यही फॉर्मेट रहेगा आर्टिकल का, फॉर्मेट के 1 मार्क्स,
कंटेंट, एक्सप्रेशन वगैरह सबका ध्यान रखना है, ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द ग्रामर सेक्शन. It's complete the following dialogue. Okay, dialogue writing है ये, by filling in the blanks with suitable words. The first one has been done as an example. Okay, Rohit, sir, I want to use the library facility. May I know the rules and regulations? Librarian, sure. The first thing is that you dash carry your NIOS identity card because we don't allow outsiders. Rohit, all right. How many books dash I borrow from the library? Okay, so Rohit is asking his librarian to use the library facilities. May I know the rules and regulation? He wants to know the rules and regulation of the library from his librarian. So librarian said him that sure, the first thing that you have to carry is your NIOS identity card. Okay, we do not allow to use the library facilities to outsiders. You have to bring your NIOS identity card, right? So sure, the first thing that thing is that you must carry. must की जगह should भी आ सकता है. अब देखो appropriate लग रहा है कि नहीं, read करो. Sure, the first thing is that you must या should carry your NIOS identity card because we don't allow outsiders, right? Now Rohit said, all right, how many books dash I borrow from the library? Okay, so he is asking a question. Okay, so he can use can. Okay, can. How many books can I borrow from the library? ठीक है. Fill in the blanks with appropriate prepositions. I had a busy week, so would like to stay at home the weekend. I had a busy week, so would like to stay in home for the weekend, at home for the weekend, in home for at the weekend या at home by the weekend. Okay, तो यहाँ पे क्या आएगा? अब you have to stay somewhere. Home is a place. It's a place and place के साथ of course at लगता है. place के साथ at लगेगा तो यहाँ पे of course at आ जाएगा. and appropriate भी लग रहा है ना, appropriate भी तो लग रहा है. read करके देखो. I had a busy week, so I would like to stay at home for the weekend. weekend के लिए, for means के लिए, weekend के लिए मैं home में रुकना चाहता हूँ because I had a busy week. Okay, now we have to change into reported speech. She said, shut the door. She said to him, it is good to see you. The king ordered that they should celebrate their victory. ओके, तो रिपोर्टेड स्पीच मतलब क्या कहते हैं? हम किसी को ये चीज़ बता रहे हैं. आप मेरी बात समझो. फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन को बताया, मुझे किसी ने बताया एंड मैं वो किसी थर्ड पर्सन को बोल रही हूँ. समझ आई? मान लो जैसे उसने मुझे ये कहा कि या वी विल मीट टुमारो, राइट, वी विल मीट टुमारो. तो मैं आपको कैसे बताऊंगी? शी सेड टू मी दैट वी मीट टुमारो. ठीक है, वी विल मीट टुमारो. ओके, शी सेड मी दैट वी विल मीट टुमारो. समझ आया आपको? फर्स्ट पर्सन ने मुझे बताया, फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन को बताया, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को कैसे बताएगा वो. ठीक है, लाइक शी सेड टू मी दैट वी विल मीट टुमारो. समझ गए? वही इसमें बोलना है. शी सेड टू मी दैट शट द डोर. या तो सेड आ जाएगा या तो उसने मुझे ऐसे, आप इसका एक्सप्रेशन देख रहे हो, मतलब इसने बोला कि हाँ ये तू कर. ठीक है, तो इसमें क्या दे रही है? काइंड ऑफ ऑर्डर भी दे रही है. ठीक है, तो आप इसमें ऑर्डर भी लगा सकते हो अगर आपको सेंटेंस को और वो करना है कि शी ऑर्डर्ड मी टू शट द डोर. ओके, शी ordered me to shut the door. ये आप लिख सकते हो, या तो आप ये भी लिख सकते हो she said to me to shut the door. ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है, now she said to him it is good to see you. She said to him that it was good
टू सी हिम, या तो शी वॉज हैप्पी, या तो शी इट वॉज गुड टू हर टू सी हर, ऐसे करके भी आप कुछ लिख सकते हो, मैं आपको बता के दिखाती हूँ. शी, या तो आप एक्सक्लेम्ड भी लिख सकते हो, वो ये चीज़ बोल रही है, वो एक चीज़ अपने आप को मान रही है, ठीक है, कि मुझे अच्छा लगा उसको देख के, तो शी एक्सक्लेम्ड भी आप लिख सकते हो. जो इतनी इंग्लिश आती है ना, लगा देनी है बस. ये सब वर्ड्स देख के ना एग्जामिनर को अच्छा लगता है, वो ऐसे ही मार्क्स दे देगा आपको कि हाँ भाई बच्चे की इंग्लिश अच्छी है. शी एक्सक्लेम दैट शी felt good to see him. Okay, now the king ordered that they should celebrate their victory. The king said we should celebrate our victory. Okay, मुझे उन्होंने ऑर्डर दिया, द किंग ऑर्डर्ड मी. ओके, बट आई विल नॉट से यू ना कि हाँ उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया, नहीं. आई विल से ही द किंग सेड मी दैट वी शुड सेलिब्रेट आर विक्ट्री, कि हमें विक्ट्री हमें अपनी सेलिब्रेट करनी चाहिए. ओके, ऑर्डर का ऑर्डर नहीं आ जाएगा, सेड बोलूँगी मैं दूसरे पर्सन को, थर्ड पर्सन को मैं ये बोलूँगी, ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस तो किंग ने मुझे बोला है, बट अब जो मुझे लिखना है रिपोर्टेड स्पीच में, जो मुझे कन्वर्ट करना है, वो तो मुझे किसी थर्ड पर्सन को कन्वर्ट करके बतानी है ना, ठीक है. तो द किंग said that we should celebrate our victory. Okay, now you can take SS if you want, it's important. Now complete the passage given below with conjunctions word. Whether you are a family man dash a monk, the most important thing is how you look at dash reflect upon life and the experience it brings. Dash your attitude is positive and expecting you live with God. Even dash in the world, a negative attitude will bring just the opposite result. Then you choose to live with the devil, knowing one's own mind and its lower tendencies while constantly trying to transcend them should be the focus of a spiritual aspirant. A Mahatma was once asked, Holy One, are you sure that you will go to heaven when you die? The Mahatma replied, Yes, of course, but how do you know? Okay, so it's a passage and we have to complete it with the appropriate conjunctions word. Conjunctions are the words which join two different sentences like or, when, so, also, between, if, and whatever. Or, ठीक है, जो भी. Whether you are a family man or a monk, ठीक है बेटा, और, ठीक है, either you are a family member or a monk, the most important thing is how you looked and reflect upon life, ठीक है, and the experience it brings. If whether you are a family man or a monk, the most important thing is how you look at and reflect upon life. मतलब आप कैसे देखते हो चीज़ों को एंड अपने लाइफ में कैसे रिफ्लेक्ट कराते हो उन सब चीज़ों को, ठीक है, एंड द एक्सपीरियंस इट ब्रिंग्स. इफ़ योर एटीट्यूड इज़ पॉजिटिव, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है एंड एक्सेप्टिंग यू लिव विद गॉड इवन व्हेन while even while in the world dash a negative attitude will bring just opposite, but एक नेगेटिव एटीट्यूड हमेशा ऑपोजिट रिजल्ट ब्रिंग करेगा. ओके, तो आपके हो गए कंजक्शंस. कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स. ओके, तो हमें वर्ब का यूज़ करना है, करेक्ट फॉर्म मतलब टेंसेस वगैरह ही आ गया इसमें, ठीक है. मृदुला गोज फॉर इवनिंग वॉक डेली. यस्टरडे शी डैश लेट फ्रॉम हर ऑफिस बट शी डैश डू नॉट मिस हर वर्क. व्हेन शी डैश रिटर्न home from her work, she found that her little daughter injured her left wrist. Okay, तो फर्स्ट सेंटेंस में ही हमें पता चल गया कि यहाँ पे यस्टरडे की बात की गई है, इट मीन्स यहाँ पे पास्ट की बात की गई है,
राइट तो हमें यहाँ पे जो भी वर्ब्स दिए ना उन्हें हमें पास्ट फॉर्म में बदलना है. वेरी इजी. कम का क्या हो जाएगा? के. डू का हो जाएगा ड. डोंट. सॉरी डिड. डोंट कैरी यू डिड. ओके. रिटर्न का हो जाएगा रिटर्नड. इंजर का क्या हो जाएगा? इंजर्ड. Then let's read again. Mridula goes for evening walk daily. Yesterday she came late from her office, but she did not miss her walk. When she returned home from her walk, she found that her little daughter injured her left wrist. Okay, easy. Section D, literature. Answer the following questions in one or two sentences each. One sentence or two sentence का ही आपको आंसर देना है. What kind of garments do the weave make in the morning? ओके ये आपका इंडियन वीवर्स चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन कि कैसे गारमेंट्स बनाते थे, वीव करते थे, मतलब दे यूज टू मेक इन द मॉर्निंग. दे आर वीविंग इट फॉर अ न्यू बॉर्न चाइल्ड. मॉर्निंग सिंबलाइजेस फ्रेशनेस एंड हैप्पीनेस. देखो मॉर्निंग यूज टू सिंबलाइजेस द फ्रेशनेस ऑफ द नेचर एंड यू नो इट मेक्स हैप्पी टू अस. राइट तो एंड इट ऑल्सो सिम्बलाइजेज हैप्पीनेस. राइट तो दे वर वीविंग इट फॉर अ न्यू बॉर्न चाइल्ड. न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए दे वर वीविंग समथिंग इन द मॉर्निंग विच सिम्बलाइजेज फ्रेशनेस एंड हैप्पीनेस. ओके व्हाट वाज और चॉइस इंटरनल. व्हाट was the reaction of Gopal's father on the suggestion of shifting to Agra? The last stone mason से चैप्टर से लिया गया है ये कि व्हाट वाज द रिएक्शन. गोपाल फादर का क्या रिएक्शन था आगरा शिफ्ट करने के सजेशन से. ओके. Salim regarded his work as a service to God and he wanted to keep the 100-year-old tradition continue his work. Okay, तो सलीम ने रिगार्ड किया था अपने वर्क को कि सर्विस टू गॉड, गॉड का हम सर्विस करते हैं एंड ही वांटेड टू कीप द 100-year-old ट्रेडिशन एंड कंटिन्यू हिज वर्क. उसको वो जो ट्रेडिशन था 100-year-old पुराना उसको कायम रखना था एंड वो अपने वर्क को कंटिन्यू करना चाहता था. इसलिए उसने बोला था उसको कि ये रिएक्शन था उसका. ठीक है, गोपाल के फादर सलीम का ये रिएक्शन था. Okay, now next. Why does the child feel helpless? My only cry इस poem से लिया गया है. Why does the child feel helpless? Child को helpless क्यों feel हुआ? The child feel helpless because children alone cannot change the situation. They need the help of adults, but the adults do not realize that they are destroying the world by making arms. Instead, they deceive the children and themselves with lies. Okay. जो चाइल्ड को हेल्पलेस इसलिए फील होता है क्योंकि एक जो बच्चे होते हैं ना वो दे कैन नॉट चेंज द सिचुएशन अलोन. ठीक है, बाय देमसेल्फ. दे नीड द हेल्प ऑफ अडल्ट ऑफ कोर्स, बट द अडल्ट डू नॉट रियलाइज दैट दे आर डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड. बट अडल्ट को रियलाइज ही नहीं होता कि दे आर कहीं ना कहीं से दे आर डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड बाय मेकिंग आर्म्स. वो आर्म्स को मेक करने में इंस्टेड दे डिसीव द चिल्ड्रन एंड देमसेल्फ विद लाइफ. ठीक है, वो बहलावा दे देते हैं झूठ बोल बोल के अपने बच्चों को भी एंड अपनों को भी, खुद को भी. ठीक है, नेक्स्ट. What is the similarity between the break of the day and the birth of a baby? ठीक है, कि सिमिलैरिटी क्या है इन दोनों सेंटेंस में कि डे का ब्रेक एंड एक बेबी के बर्थ पे what is the similarity between? Okay, तो similarity between the break of the day and the birth of a baby is that both symbolizes a new beginning. कि डे का ब्रेक होना, ठीक है, डे का ब्रेक होना एंड एक बेबी का बर्थ होना, ये दोनों एक न्यू बिगिनिंग को सिम्बलाइज करता है. ठीक है, इट सिम्बलाइज अ न्यू बिगिनिंग. Next, answer the following questions in one or two sentences each. When did Gandhi ji give up the idea of smoking? गांधी जी ने कब गिव अप किया स्मोकिंग का आइडिया? स्टीलिंग एंड एटॉर्नमेंट का चैप्टर है ये. ठीक है, गांधी जी एंड हिज फ्रेंड गेव अप the idea of smoking after they had given up the idea of suicide. जब उन्होंने सुसाइड करने का आइडिया गिव अप करा तो तभी से उन्होंने आइडिया ऑफ स्मोकिंग भी तभी से उन्होंने गिव अप कर दिया, उन्होंने और उनके फ्रेंड ने. ठीक है, नाउ व्हेन डिड द टाइगर रियलाइज दैट ही वाज टोटली रॉन्ग अबाउट द ओपिनियन ही हैड फॉर्म्ड अबाउट ह्यूमन बींग्स. ये और का ध्यान रखना है. ठीक है, और मतलब इंटरनल चॉइस गिवन है. ओके, when did the tiger realize that he was totally wrong about the opinion he had formed about human beings? A tiger comes to town one. ये इस चैप्टर से लिया गया है. एंड टाइगर को कब रियलाइज हुआ कि वो पूरा गलत है अपने ओपिनियन में जो उसने फॉर्म किया था ह्यूमंस के बारे में. द टाइगर ओपिनियन अबाउट मैन चेंज व्हेन ही केम आउट ऑन द स्ट्रीट एंड सॉ मैन रनिंग फॉर देयर लाइफ.
टाइगर ने अपना ओपिनियन तब चेंज किया जब वो अपने स्ट्रीट में आया एंड देखा कि जो लोग थे वो भाग रहे अपने ज़िंदगी के लिए, ठीक है, कि लाइक हाउ ह्यूमंस रन फॉर देयर लाइफ स्टाइल एंड ऑल वट एवर, राइट. नाउ what are the top 4 civilian awards that बिस्मिल्लाह खान received? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से चैप्टर से लिया गया ये क्वेश्चन कि कौन से ऐसे 4 सिविलियन अवार्ड्स थे जो कि बिस्मिल्लाह खान को रिसीव हुए थे. द टॉप 4 सिविलियन अवार्ड्स दैट बिस्मिल्लाह खान रिसीव्ड वर भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्मा विभूषण. ठीक है, ये 4 थे, बड़े इजी है, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्मा विभूषण. ठीक है. नाउ वेयर डिड आंटी रूबी गेट द परकीत फ्रॉम? द पैरट हु वुड नॉट टॉक. ओके, आंटी रूबी को कहाँ से मिला परकीत? आंटी रूबी ब्रॉट द पैरट फ्रॉम अ बर्ड कैचर. उनको एक बर्ड कैचर से ये पैरट मिला. बर्ड कैचर मीन्स द पर्सन हु कैचेस birds, different birds, who visited all the houses on their road. ठीक है. Next, answer any one of the following in 30 to 40 words each. These are for 3 marks, तो थोड़ा बड़ा आंसर होगा ये. What was the young man's opinion about his father's work? Do you think he was right? इसमें भी चॉइस है, दोनों में से कोई एक करना है आपको. द लास्ट टून मैसन से लिया गया ये कि यंग मैन का क्या ओपिनियन था उसके पापा के वर्क के लिए, एंड डू यू थिंक ही वॉज राइट, क्या उसकी वो थिंकिंग सही थी. ही थॉट हिज फादर्स वर्क डिड नॉट फेच मनी, कि वो सोचता था कि मेरे पापा के जो वो काम करते हैं उसमें तो पैसा ही नहीं है. ही डिडंट फेंच मनी. इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज विद रीजंस. आपको जो भी है, आप इंडिविजुअलिटी आपको दिखानी है, आपका जो थॉट्स है आप लिख देना बस इसमें इलैबोरेट करके. ठीक है. 30 से 40 वर्ड्स की वर्ड लिमिट रखना. 30 से 40 वर्ड्स मीन 3 से 4 लाइन में खत्म करना है. ठीक है. अब वाई वॉज नॉट द मजिस्ट्रेट हैप्पी टू सी द एफिडेविट. ठीक है. वाई डिड ही फाइनली एक्सेप्टेड. ठीक है. The magistrate was not happy to see the affidavit because it was written in Sanskrit which he could not read. ठीक है. magistrate क्यों happy नहीं थे affidavit से? क्योंकि वो जो लिखा हुआ था वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ था जो कि उनको बिल्कुल भी पढ़नी नहीं आती थी. So he was unable to make out what was written in it. वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि इसमें लिखा क्या है. He finally accepted it because Sanskrit is one of the official languages of India. But उन्होंने finally उसको accept कर लिया था क्योंकि संस्कृत is one of the official language in India, of India. Okay, and being a government officer he could not have refused it. वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे तो वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकते थे क्योंकि एफिडेविट तो सही था ना, लैंग्वेज चाहे वैसी थी, संस्कृत थी, उनको आती नहीं थी, बट या ही कुड नॉट रिफ्यूज इट, तो फाइनली ही एक्सेप्टेड दैट. Okay, so that was it for this video. Your part B is completed and our sample paper is also completed. So yeah, thanks for watching.